हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है आज। कल से शुरुआत होगी नए फाइनेंशियल ईयर की। एंड आई बिलीव इट शुड बी अ फ्रेश बिगनिंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल लिबरेशन जर्नी एज वेल, राइट। वो तभी होगा जब आप खुद डिसाइड करेंगे कि यस आई एम रेडी टू मूव, राइट, रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन माय फाइनेंशियल जर्नी। तो तैयार रहिए, नई शुरुआत है तो नया दिन नई 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 तरीके से शुरुआत करिए। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल पहला नवरात्रा था, नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिन शुरू है, सब इतने पवित्र दिन है। आप लोगों को रियली डिसाइड करना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइनेंशियली फ्री दिस ईयर। आज जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना रही। मैं फ्राइडे नहीं बना पाई, सैटरडे संडे, बिकॉज माई थ्रोट वॉज जस्ट कम्प्लीटली गॉन एंड टुडे आई एम इन अ कैपेसिटी टू स्पीक एंड मेक वीडियो। तो ये आपके सामने मैं शेयर करूंगी कि क्यों मार्केट लगातार गिर रहा है, what will happen in Indian market and what are the things that are happening around the world। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि why global markets are declining। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स फिल्टर आउट करे हैं, से अबाउट रफली 7 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं पूरा रिसर्च करके। तो पहला है कि ट्रेड वॉर एस्केलेशन। तो सबसे पहला जो है ट्रेड वॉर एस्केलेशन, बेसिकली Trump's Liberation Day tariff may hit all nations, fueling global trade war fears. Secondary tariffs on countries buying Russian oil could disrupt global supply chain, and this impact will be higher import cost and inflation। तो अगर आपको पता होगा तो इंडिया ने भी रशिया से चीप ऑयल खरीदा था। तो ही से सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन द कंट्रीज buying Russian oil. So India is one of them. So there is a probability that India may have double tariffs or something like that, right? So this I'm telling you in general right now. I have no idea what's going to hit, but I'm just telling you. Second point is recession fears are growing. US recession probability is now rising to 35-40%, dampening investor segment sentiments. तो बहुत सारी चीजें हो रही है। इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू माय सन एंड आई वाज सेइंग कि ये रिसेशन का क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। ही इज वर्किंग इन यूएस, सो ही वाज सेइंग मॉम इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर very long time, like it's been 3 years or 4 years people have been just saying that US is going in recession. So he says there is nothing like as fearing factor in US at this point of time about recession, but yeah, there is a lot of uncertainty because of the Trump's decisions, a lot of decisions. So that is there, but right now इतना heavy probability I don't know है कि नहीं है, वो देखा जाएगा बाद में। But Goldman Sachs slashed its S&P target again due to the growth risk, and the impact will be weak corporate earnings and falling investors confidence. In fact, जो मुझे लग रहा है कि in American market those who are living in America are not losing their confidence, rather they are investing more. Like people who are smart, they are investing more right now because they know in the longer horizon market will bounce back, right? It's only the people who just are there for a few years or few months, they are getting worried about it. Third point is flight to safe havens. Uncertainty is pushing investors towards gold, which recently touched a record high. Would you like to see how gold is doing right now? So I'll just show you how the gold is doing. Here is the gold chart. Look at it. This is how it was, and it has broken all the past boundaries on 12th March. Across the 3000 mark at about on the 18th of March, and once again on the 27th March it crossed the past all lifetime high. इनफैक्ट अगर हम आज की ही बात करें तो इसने ऑलमोस्ट लाइक 84 टू 100 $50 50 नहीं $40 का इसमें मूव आया है, which is a big move in one day in gold. So gold is just moving um, higher and higher and higher, and उसका reason simply यही है कि there is uncertainty in the geopolitical situations, in the currency, in global sentiments. So that uncertainty is driving gold higher, and US Treasury yields are falling, reflecting a shift to safer assets. इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी एंड रिड्यूस्ड रिस्क एपेटाइट ग्लोबली। मतलब लोग जो है
They will prefer to invest in the safe haven rather than taking chances in equity, right? So that is why you will see a lot of withdrawal being done by FPIs, etc., and they are putting it into more into safer havens. And at this point of time, people find gold as one of the safest instrument to invest in. And the next is broad market sell-off. Stocks indices in Asia, Europe, and US are plunging due to unpredictable trade policies and inflation concerns. And Chinese stocks are under pressure after a record number of WTO trades disputes over export surges. इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? वाइड स्प्रेड करेक्शन इन ग्लोबल इक्विटीज. Fifth point is currency and bond turbulence. The US dollar is weakening while treasury yield continues to slide, reflecting global shift from risk assets. Emerging markets like India are feeling the pressure as capital flows reverse. Then impact अगर देखा जाए तो currency volatility and economic strain in developing market. I would like to show you. So अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स हैज मेड अ लाइफ टाइम ऑफ हाई ऑफ 110 और वहां से इसने गिर के एक 103 पे एक थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज किया. इट्स अ लिटिल पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया. लेट्स सी डॉलर आईएनआर क्या चल रहा है रेशो. अगर हम देखते हैं कि यूएसडी टू आईएनआर एक महीने के अंदर, अगर हम एक महीने में देखें इसने क्या हाई लगाया, तो अराउंड 87.44 का हाई लगाने के बाद आज की डेट में ये करेक्टेड है टिल 85.51. अगर हम 6 मंथ्स में देखें तो इस डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया था 87.44 का और यहीं पे डबल ट्रिपल टॉप लगा के और इसने अभी थोड़ा सा करेक्टेड खड़ा हुआ है. दिस इज अ स्लाइट पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन मार्केट की डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है. Sixth point I told you is the geopolitical tensions rising. Trump's threats of new tariff on Russia amid stalled Ukraine ceasefire talks add to the uncertainty. Potential secondary sanctions on Russian oil could disrupt global energy market, and the impact could be increased oil price volatility and inflation concerns globally. Seventh point is India is not immune. India is basically has gone through a lot of turbulence because of the FII outflow. The foreign investors are pulling out funds from Indian equity. Rupee depreciate हो रहा है, but हालांकि अभी थोड़ा strong हुआ है. And impact आ रहा है because IT और metal थोड़ा सा weak है, right? तो हमको थोड़ा cautious रहना है, हमको थोड़ा सा अपने portfolio को diversify करके रखना है. And we got to focus on picking up the quality stock at the lower level without fear, right? ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट गिरता है तो गिरता ही चला जाता है. ऐसा नहीं होता है. मार्केट गिरते गिरते कहीं पे रुकता है और वहां से जब चलता है तो आपको बहुत बढ़िया बाउंस मिलता है. तो फर्स्ट हम एक बार डिस्कस, देखो मैं इसलिए आपको क्या बोल रही हूँ कि मैंने जब पूरा मार्केट स्कैन किया तो मुझे इसे बहुत फियरफुल सिचुएशन नहीं लग रही है कि मैं एकदम बोलूँ कि नहीं, एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स जो कि थोड़े मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, व्हिच आर एट अ रेजिस्टेंस लाइक मीडिया इज लुकिंग वेरी नेगेटिव राइट नाउ. आईटी थोड़ा अंडर स्ट्रेस है, रियलिटी थोड़ा अंडर स्ट्रेस है ना. बट कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एफएमसीजी मुझे बहुत नाइसली बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छे स्पेस पे दिखाई दे रहा है. अब देखो ये इसने डबल बॉटम क्रॉस किया है, अब ये स्पेस अगर क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी तो ऊपर चलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, स्मॉल कैप ये जगह पे अगर क्रॉस हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है तो आपको एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है. सीपीएससी ये क्रॉस हो जाता है, सीपीएससी तो हमको एक अच्छा मूव मिलेगा. एमएनसी एमएनसी में ये जो बॉर्डर क्रॉस होने के बाद आपको अच्छा मूव मिलेगा. मुझे ऐसा कहीं फियरफुल सिचुएशन नहीं दिख रही है कि मार्केट में बहुत बुरी तरह मैसिव गिरावट की तैयारी, बट आई एम जस्ट सीइंग द प्राइस. हो सकता है एक दो दिन और गिरावट हो सकता है एक दो दिन थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि ये जो निफ्टी का सपोर्ट जोन बना हुआ है 23,400 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. अगर कल माना आज, क्योंकि इंटरनेशनली मैं देख रही हूँ तो मार्केट काफी मैसिवली डाउन है, राइट. अगर मैं देख रही हूँ तो मार्केट आज मैं गिफ्ट निफ्टी को अगर देख रही हूँ तो गिफ्ट निफ्टी इज रफली अबाउट 200 प्लस पॉइंट्स डाउन, 260 पॉइंट्स डाउन, राइट. तो हो सकता है कि कल निफ्टी गैप डाउन खुले. अगर वहां से एक शार्प बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर कर जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, राइट. बट अगर नहीं आता, अगर क्रॉस कर जाता है, गिर जाता है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 23,400 का, तब आपको नीचे की तरफ में इसमें नीचे की तरफ गिरते हुए ये 23,000 का लो लगा सकती है.
राइट। तो ये मेरा प्रिडिक्शन रहेगा। बट एनीवे ये अप डाउन चलता रहता है मार्केट में। बट आप देखो बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग दिख रही है, राइट, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ फॉल, राइट, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ फॉल इन इन अदर सेक्टर्स। जो हमारा बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, उसमें केवल 11 पॉइंट्स का ड्रॉप था, राइट। बुल्स एंड बियर्स आर, अब देखो इस कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करो। बुल्स एंड बियर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, राइट। बुल्स एंड बियर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। हो सकता है कल इसमें गैप डाउन ओपनिंग हो और ये एक सपोर्ट जोन बनेगा जहां से इसमें 51,000 का वहां से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। आपको वेट एंड वॉच करना है, देखना है कितना शार्प मूवमेंट आता है। जो दो सेक्टर मुझे बहुत वीक लग रहे हैं, एक तो ऑटो थोड़ा वीक लग रहा है और एक मीडिया वीक लग रहा है बाय लुकिंग एट इट। तो मैंने जिस चीज को रेड मार्क कर रखा है ना, वो सेक्टर्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। फार्मा भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। बट लेट्स सी कल क्या होता है। कल का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है, बट वी डोंट नीड टू बी गोइंग हेल्टर स्केल्टर और वरीड। और मार्केट का रूल यही है, जाएगा नीचे फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चलता रहता है। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर स्टॉक्स शेयर करूंगी जिनको आप रडार पे रख सकते हैं। इट्स जस्ट अ वॉच लिस्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में बिल्डअप्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं और लगातार पॉजिटिव ही बिल्डअप्स है इन स्पाइट ऑफ सच अ नेगेटिव मार्केट। आप देखो इसमें जो कैंडल बनी है ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है और पास्ट बैरर के आसपास आके ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के हाई मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर विच इज 873, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट अबाउट 850। ऊपर की तरफ आप अपने टारगेट्स को उसी हिसाब से मूव कर सकते हैं। लाइक जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका, अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट्स का, फिर 20, 10, 15, 20, 30 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस मूवमेंट कर देख सकते हैं ऊपर की तरफ। एक स्टॉक जिसमें बड़ा अच्छा खासा मूव आया था वो था ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटानिया में जितने भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक अ सिमिलर सेटअप। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 5050 के ऊपर, राइट। थोड़ा लेवल्स पे ध्यान करिएगा बिकॉज मार्केट हैज बीन नेगेटिव। बट एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है। आप ये देखो एफएमसीजी सेक्टर वाज द मोस्ट पॉजिटिव वन। तो उसी के चलते मैंने आपको ब्रिटानिया ढूंढ के दिया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसमें इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अब 5050। जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, जो मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो बने रहिए। भारतीय एयरटेल में भी बहुत शार्प रिकवरी आई थी फ्रॉम द लोअर लेवल्स। आप देखो भारतीय एयरटेल, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको बहुत समय से देती आ रही हूँ, इस स्टॉक के बारे में बात करती आ रही हूँ। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ये स्टॉक हॉरिजॉन्टल था, बिल्कुल एंड ऑफ द डे गिरा और शार्प बाउंस आया है। पूरा हॉरिजॉन्टल था ये स्टॉक, मतलब इसमें कोई डेवलपमेंट्स हो रहे थे बट नॉट विजिबल इन द प्राइस। ट्रेंड लाइन पे गिरा और बाउंस किया, तो अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1780 के ऊपर ढूंढ सकते हैं। 1780 के ऊपर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और आपका टारगेट क्या रहने वाला रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का और टारगेट आपका रहेगा 1800, 1825, 1850, 1875, 1900। और आपका जोन रहेगा लाइक होराइजन रहेगा करीब 2 से ढाई महीने का। थोड़ा स्पीड इस स्टॉक में कम है बट स्लोली ग्रेजुअली ऊपर ही जा रहा है। अगर आप पेशेंट के साथ वॉच करेंगे तो आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट इज HDFC Life. HDFC Life insurance company. Look at the breakout, look at the development. Let me remove all the drawings. Here is the 688 के ऊपर आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं। लुक एट द ह्यूज आप इसको वीकली चार्ट में देखिए, अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन दिया है और अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं HDFC लाइफ में अबव 689। आपका SL रहेगा 666 का और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपके रहेंगे अगेन जितना हमने स्टॉप लॉस रखा है करीब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 10, 15, 20, 30 ऐसे रहेगा। स्टॉप लॉस डीप है तो डेली टाइम फ्रेम रहेगा, इंट्राडे का ट्रेड नहीं है। अगर आपको लेना होगा तो उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। और आने वाले समय में मेरा टारगेट इसमें रहने वाला है 700 एंड 720, 730, 740 तक का। और होल्डिंग स्टॉक है ये, इंट्राडे आपकी चॉइस है, आप बनाएंगे वो। लास्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस इंडिया के डेवलपमेंट्स जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देखो how many bottoms it has formed, it's getting ready to go
above 3100। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। आप ध्यान रखिएगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी वॉच लिस्ट है और मेरी वॉच लिस्ट में मैं रिसर्च रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। इसमें कहीं ब्रेकआउट आएगा, कहीं नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। सो आप जो ये हाई है इसके ऊपर हमारा बाइंग इनिशिएट हो जाएगा 3090 के ऊपर। ट्रेंड लाइन पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऊपर की तरफ 3150, 3200, 3250, 3300, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिए, कहीं पे भी ब्रेकआउट आता दिखता है तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। With this, I'll be signing off and stay tuned for more such updates and make people financially literate right now. आज नहीं सिखाओगे तो कल बहुत ज्यादा वैल्यू करके सिखाना पड़ेगा। प्लीज एजुकेट women in your environment. Please educate people in your environment. Help them in start their investment journey. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। आपका हर चीज इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर।